Hello friends, today we are going to learn about control structures. So there are three types of control structures measurements: control flow structure, data flow structure and data structure. First of all, we will see control flow. So control flow is nothing but your if and else statement in your programming languages. It addresses the sequence in which instructions are executed in the program. This aspect of structure reflects the iterative and looping nature of the program that already I have told you in the beginning of the lecture, that control flow is nothing but your statements, or what is the flow of the statements as per the conditions and looping given. Simple size counts and instruction just once. Control flow makes more visible the fact that an instruction may be executed many times as the program is actually runs. The control flow measures are usually modeled with directed graph. Each node or point corresponds to the program statement. So that control flow structure or measure is indicated by directed graph, and each node corresponds to the program statement. Each arc or the edge indicates the flow of control from one statement to another statement. We call these directed graphs as control flow graphs or flow graphs. So this is the example of control flow graph, and here we can say that nodes indicating the instruction. So 10, 20, 30, 40, 50, these are the instruction names. So after 10, 20 getting executed. So 10 to 20 there is one age is given, 20 to 30, 30 to 40. After 40, if flag is equal to 0 or division is equal to limit, then 80. So if flag is equal to 0, it is going to 80. So 40, after 40, 50 is going to execute, and if 50 get executed, if flag is equal to 0 or division is equal to limit, then 80. So after 50 there is a statement which is called as 80. Okay, 60 is not there, so 50 is connected to 80 if condition is satisfied, and if not, there is a direction to the 60. So we have to both consider the program and control graph. As per the program given, we have to draw the control graph. So 50 is the if statement. So after 50, if the condition is satisfied, it is going to 80 number state, so it will go to 80 node. After 80, 110 statement get executed. So if the condition is satisfying, you will go to 80 number statement, and after 80 there is one statement again. If flag is not equal to 0 or p is greater than 4, then 110. That means if the condition is true, we are going to 110. So 110 is the statement which is saying print p is simple and 120 is the end. So after 1110 will get execute, it will print and then end. So दिस इज द फ्लो. 40 से जाके वो 50 तक पहुंच रहा है. 50 में आपकी कंडीशन है, वो अगर सेटिस्फाई हो रही है तो वो 80 नोड पे जाएगा. 80 में फिर से एक कंडीशन है, वो अगर सेटिस्फाई होती है तो 110 पे जाएगा, एंड 110 इज जस्ट प्रिंटिंग द पी वैल्यू, and after printing the p value your program get end. So here 120 is the end. Then after in 50 if the condition is not satisfying, then 60 स्टेटमेंट जो होगा आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, तो 50 के लिए 60 के पास जो है वो नोड है. नाउ 70 जो है वो क्या बोल रहा है, गो टू 40. सो 70 इज गो टू 40. देन 80 से if flag is not equal to 0 और p is greater than 4, then 110, और अगर वो नहीं है तो प्रिंट डिवीजन. सो इसकी वजह से 80 के पास दो चीज़ें हैं. अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो 110 पे जाएगा, अगर नहीं हो रही है तो 90 स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा. Okay, and then go to 120. So we are having already the state of 120, so no need to draw 100 number of node, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास प्रिंट पी का ऑप्शन हो चुका है 120 वाला. सो वी डायरेक्टली कनेक्ट टू प्रिंट पी. प्रिंट डिवीजन वाला जो स्टेटमेंट है वो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, 120 को प्रिंट करेंगे.
सिमिलरली गो टू 40, सो 60 के लिए क्या 70 स्टेटमेंट क्या है आपका 70 गो टू 40, तो 40 के ऊपर तो हम ऑलरेडी है ही। ओके, सो दिस इज द कंट्रोल फ्लो। तो आपको इफ स्टेटमेंट से देखते जाना है कि किस तरीके से आपका कोड दिया है, उसके हिसाब से आपको ये ग्राफ निकालना है। नेक्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर इज डेटा फ्लो। इट फॉलोज द ट्रेल ऑफ डेटा आइटम as it is created or handled by the program. It traces the behavior of the data as it interacts with the program. A flow graph is a directed graph in which two nodes, the start nodes and the stop nodes, obeys the properties. जो भी आप फ्लो ग्राफ निकालेंगे दैट हैज़ एंड उसमें जो स्टार्ट नोड होगा और स्टॉप नोड होगा दैट हैज़ टू एंड दिस फ्लो ग्राफ हैज़ सम प्रॉपर्टीज़. स्टॉप नोड हैज़ आउट डिग्री 0. ओके, स्टॉप नोड हैज़ आउट डिग्री 0. ऑब्वियसली अगर आपका एल्गोरिदम स्टॉप हो रहा है तो उसके बाद कोई भी स्टेज आर्क नहीं रहेगी, सो आउट डिग्री इज ऑब्वियसली 0. एंड एवरी नोड लाइज ऑन सम पाथ फ्रॉम द स्टार्ट नोड टू द स्टॉप नोड. फॉर एग्जाम्पल दीज आर द flow graphs from the program. So how to draw the flow graph? For example, if x1 to x2, x2 to x3 and x3 up to xn, so this is the first and this is the last. So how you will write pn ब्रैकेट में लिखना है आपको x1 x2 up to xn. Now नेक्स्ट डायग्राम में क्या दिया हुआ है आपको, वहाँ पे दो सर्कल्स हैं. ओके, वहाँ पे दो सर्कल्स है, लेकिन सर्कल्स ऐसे जैसे पीछे वाले डायग्राम में था एक के बाद एक था, तो यहाँ पे कैसे हैं एक ही सर्कल को दो एजेस दी हुई है. ओके, सो इफ़ ए देन एक्स, अगर ए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो एक्स आपका एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं है तो डायरेक्टली आप स्टॉप हो जाएंगे. ओके, सो एवरी प्रोग्राम और एवरी डायग्राम हैज़ सम स्टार्टिंग नोड एंड एंडिंग नोड. तो आपको यहाँ पे इफ़ ए देन एक्स, यानी यहाँ पे एक स्टार्टिंग नोड है और यहाँ पे आपका ये एंडिंग नोड है. सो इफ़ कंडीशन इज सेटिस्फाइंग यू आर गोइंग टू एक्स, अगर कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही तो डायरेक्टली आप स्टॉप की तरफ जाएंगे. सिमिलरली यहाँ पे ये जो सेकंड डायग्राम है, यहाँ पे जो ए है वहाँ पे दो पाथ है आपके पास, एक एक्स की तरफ जा रहा है, दूसरा वाई की तरफ जा रहा है. सो इफ़ ए देन एक्स एल्स वाई. यहाँ पे जो प्रीवियस डायग्राम थी वहाँ पे डायरेक्टली वो एंड पे जा रहा था. इसका मतलब क्या है, अगर एक्स है तो ही ट्रू है, अगर नहीं है तो वो फॉल्स है. तो इसकी वजह से ये डायग्राम थी. अभी नेक्स्ट डायग्राम में क्या है, दो कंडीशंस है कि अगर ए की वैल्यू ट्रू है तो वो एक्स की तरफ जाएगा, अगर नहीं है तो वो वाई की तरफ जाएगा, और दोनों कंडीशन हो जाने के बाद उसको क्या होना है, स्टॉप हो जाना है. सो दैट इज़ द स्टॉप नोड. सिमिलरली हियर सी एन और सी एन इज इक्वल टू a1 x1 x2. a1 is going to x1 x2 up to xn. Your a condition or starting node is going to execute x1 x2 x3 up to xn. Now second is while a do x. while a do x, जब तक आपकी a की कंडीशन ट्रू है तब तक आपको क्या करना है, x की तरफ जाना है. तो यहाँ पे आपका ये लूप दिखाई दिया हुआ है. ओके, जब तक ए की वैल्यू ट्रू है तब तक आपको ये लूप में घूमना है इस तरीके से. ओके, सो दैट इज़ द सिम्बॉल गिवन हियर. रिपीट एक्स अंटिल एक्स, रिपीट एक्स अंटिल ए. तो आपको क्या करना है कि एक्स, इसका मतलब क्या है कि आपको एक्स का जो वैल्यू है, रिपीट एक्स अंटिल ए, जब तक ए नहीं है तब तक आपको रिपीट करना है. तो ये जो लूप है ये उल्टा लूप है. ओके, जो पहले लिया था हमने, अभी एक्चुअली सेम लूप है, सिर्फ यहाँ पे एक्स की से पाथ नहीं था और यहाँ पे a2 अगर फॉल्स है तो वो डायरेक्टली स्टॉप नोड पे जा रहा है. यहाँ पे फॉल्स कंडीशन के लिए क्या है, कंटिन्यूसली जा रहा है, यहाँ पे फॉल्स कंडीशन है ही नहीं. आपका जो a है वो डायरेक्टली आपका ट्रू के लिए एंड हो जाएगा, और अगर फॉल्स है तो जब तक फॉल्स है तब तक वो x की वैल्यू रिपीट करेगा. सो दीज आर सम ऑफ द डायग्राम्स